So yes, hello everyone. Today we'll start a new chapter, that is the snake and the mirror from the book Beehive. Okay, so if I talk about this chapter, the snake and the mirror, first of all, if I talk about mirror, have you ever looked in a mirror? Obviously, we all do it regularly on a regular basis, right? So, have you ever seen any animal like a dog, a cat, a snake looking into the mirror? ठीक है, नॉर्मली अगर आपके घर में कोई पेट है, सपोज डॉग है, तो कई बार आपने देखा होगा कि ही इज लुकिंग इनटू द मिरर. व्हाई? और इफ ही इज लुकिंग इनटू द मिरर, तो व्हाट इज ही सीइंग, व्हाट इज ही थिंकिंग एंड ऑल. So this chapter is all about a doctor, a snake and a mirror. This is a very humorous story. It will definitely make you laugh at some places. Okay, so let's start with the chapter. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? Definitely, it gives us goosebumps. अगर हम ऐसा सोचते हैं कि just suppose कि कोई snake जो है वो आपके किसी भी body part पे coiled हुआ है, तो अगर हम ऐसे सोचें तो definitely it gives us goosebumps. So यहाँ पे the narrator here starts the chapter with this question कि has a snake ever coiled itself round any part of your body? ठीक है, अ फुल ब्लडेड कोबरा. ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कोबरा, अ फुल ब्लडेड कोबरा, अगर वो जस्ट सपोज कि वो अगर आपके बॉडी किसी भी बॉडी पार्ट पे कॉइल्ड हुआ है, ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. और डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन जब हम डिफाइन करते हैं और ऐसा क्वेश्चन जब आपसे कोई पूछता है तो डेफिनेटली एक साइलेंट एनवायरनमेंट जो है वो हो जाता है. तो यहाँ पे द चैप्टर स्टार्ट्स विद दिस कि अ नरेटर इज डिफाइनिंग कि narrator is asking a question and everybody in the audience was silent because they don't have any particular answer. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. So the question came from a homeopath, that is again a homeopathic doctor. We all know about that. ठीक है, तो ये question जो है वो एक डॉक्टर की तरफ से आता है और जो टॉपिक है वो ऐसे स्टार्ट होता है. The topic was about when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with the tale. Or everybody in the audience, the people were listening attentively and the doctor, while the doctor was narrating his story. It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. Now the chapter starts with this. सबसे पहले तो the doctor was asking a question and he was saying, now he was describing his story from here कि एक hot summer night का time, मतलब night के बारे में बात कर रहा है. It was about 10 o'clock in the, मतलब it's like at night. Okay. I had my meal at the restaurant and returned to my room. मैं restaurant पे, mess पे अपना खाना dinner जो है वो खाकर आता हूँ and I returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. और जैसे ही मैं door open करता हूँ तो मुझे ऊपर से ना कुछ आवाज़ आती है. And it was a familiar one. मतलब ऐसा होता है कि अगर आपको पता है जो रोज़ आती है या continuously आप सुनते रहते हो, तो the noise was a familiar one. Okay. One could say that the rats and I shared the room. Now, how come the noise was the familiar one? Because कोई भी पर्सन देखकर या सुनकर ऐसे कह सकता है कि रैट्स और मैं जो है हम लोग रूम शेयर करते हैं, मतलब मेरे रूम्स में काफी सारे चूहे थे. ठीक है. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैं मैच बॉक्स निकालता हूँ और मेरे टेबल पे जो केरोसिन लैम्प रखा हुआ होता है उसको जलाता हूँ. ठीक है. The house was not electrified. Definitely there was not electricity there. Maybe it was just a rented room. ठीक है. Because I don't have much money for that thing. ठीक है. So that's why I lighted the kerosene lamp. I had just set up a medical practice and my earnings were meager. ठीक है, मतलब मैंने एक छोटा सा रेंटेड रूम ले रखा होता है, मैंने अपना मेडिकल प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट ही किया होता है और मेरी जो अर्निंग्स होती है, मेरी जो सैलरी होती है, दैट वाज मीएगर. ठीक है, मीएगर एज इन वेरी स्मॉल. मेरी जो अर्निंग्स होती है वो बहुत कम होती है, मतलब मैं इतना ज़्यादा नहीं अर्न कर पाता हूँ उस टाइम पे, बिकॉज आई हैड जस्ट स्टार्टेड माई मेडिकल प्रैक्टिस. I had about 60 rupees in my suitcase. मेरे suitcase में मेरे पास में कुछ 60 rupees होते हैं. ठीक है. Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. ठीक है. मेरे suitcase में मेरे पास कुछ 60 rupees होते हैं, कुछ shirts, कुछ धोती के अलावा एक single मेरे पास में black coat होता है जो मैंने उस time पहन रखा होता है. ठीक है.
Then I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. ठीक है. So he said कि मैं अपना कोट रिमूव करता हूँ. I just remove my white shirt and my not so white vest. Vest as in the inner garment. ठीक है, जो मैंने पहन रखा होता है, that is the vest. ठीक है. And I just hung them up. Okay. I opened the 2 windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. और मैं अपनी जो रूम में जो विंडोज होती हैं 2 उनको खोल देता हूँ. वो एक मेरा जो रूम होता है that was a very small room. outer room होता है that was facing, जिसकी one wall जो होती है, it was facing the yard. It was facing the garden over there. It was facing the yard. Okay. Next is, it had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. ठीक है. अब मेरा जो रूम होता है, right, एक उसमें टाइल्ड रूफ होती है, रूफ पे टाइल्स लगी हुई होती है विद सपोर्टिंग गेबल्स. गेबल्स क्या होते हैं? डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यहाँ पिक्चर में दे रखा है, राइट. तो यहाँ पे ऐसे ये जो हम लोगों का हट फॉर्म में होता है ना, दीज आर नोन एज गेबल्स. ठीक है, दीज आर गेबल्स. ओके. सो जो हमारा अपर पार्ट होता है जो स्लोपिंग रूफ की तरह होता है, उसको हम गेबल्स बोलते हैं, राइट. वहां पे कोई प्रॉपर सीलिंग नहीं होती है, जैसे हमारे घर पे बिल्कुल सीधी सीलिंग है, तो प्रॉपर सीलिंग नहीं होती है जो ऐसे मतलब ऐसे फॉलिंग, मतलब एक साइड की जो गेबल्स टाइप ऑफ वॉल्स होती हैं हमारे पास में, स्लोपिंग रूफ जो है वैसा रूफ होता है. ठीक है. There was a regular traffic of rats to and fro the beam. वहाँ पे there was a regular traffic of rats to and fro the beam, as in कि definitely जो जैसे मैंने बताया कि आपका gables है, तो ये जो beam है यहाँ पे there was a regular flow of rats here and there. इधर उधर भागते रहते हैं rats. ठीक है. I made my bed, pulled it close to the wall. I lay down but I could not sleep. ठीक है, मैं अपना बेड जो है वो रेडी करता हूँ. I pulled it close to the wall. Okay. और मैं सोने की कोशिश करता हूँ, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही होती है. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. ठीक है, मुझे नींद नहीं आ रही होती तो मैं उठता हूँ and I thought of having some air. तो मैं बाहर वरांडा में जाता हूँ, लेकिन the wind god, as in it seems like he had taken off. वहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं चल रही होती है. I went back into the room and sat down on the chair. वापस मैं अपने रूम में आता हूँ. I sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. ठीक है, मेरे टेबल के नीचे जो एक बॉक्स रखा हुआ होता है, मैं उसको खोलता हूँ और उसमें से मेरी जो मेडिकल प्रैक्टिस की, मतलब मेरे मेडिकल जो थिंग्स लिखे हुए होते हैं, वो बुक जो है उसको ओपन करता हूँ. उसका नेम क्या है? मटीरिया मेडिका. ओके. I opened it at the table on which stood the lamp, a large mirror and a small comb lay beside the mirror. ठीक है, तो मैं उसको बुक को खोल के टेबल पे रखता हूँ. वहाँ टेबल पे एक लैम्प रखा हुआ होता है, एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ होता है और मिरर के पास में एक कोम रखा होता है. ठीक है. One feels tempted to look into the mirror when it is near one. और definitely ये हमारी human tendency है, या ये सबके साथ में होता ही है, कि अगर आप मिरर के आसपास जाते हो या आपके आसपास में मिरर रखा होता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसमें देखें ना. उसमें देखने की हर एक पर्सन को इच्छा होती है, तो उसके साथ भी यही होता है. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. ठीक है. So I take a look in the mirror, right. In those days I was a great admirer of beauty, और मैं definitely ये believe करता था कि मैं कैसे ना कैसे कर handsome दिख सकूं. ठीक है. I was unmarried and I was a doctor. So he was just starting praising himself. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. ठीक है. अब क्या करता हूँ मैं कोम उठाता हूँ एंड आई जस्ट अरेंज माई हेयर. मैं पार्टिंग जो होती है उसको भी सेट करता हूँ, ताकि मतलब इट्स लाइक कि वो पूरी स्ट्रेट एंड नीट दिख सके. ठीक है. बॉयज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, गर्ल्स भी डेफिनेटली बाल बनाती है, लेकिन बॉयज़ समझ सकते हैं. जैसे आप पार्टिंग सेट करते हो कि आपके हेयर जो है, हेयर डू जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे, वैसा उसके साथ हो रहा होता है. अगेन आई हर्ड that sound from above. अब जब मैं अपने बाल बना रहा होता हूँ, again I heard that sound, again the sound of the rats running here and there. वो मुझे सुनाई देती है. I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. अब कई बार ऐसा होता है कि हम मिरर के बिल्कुल पास में जाके देखते हैं, बिल्कुल ऐसे कर. तो I take a close look. ठीक है. Then I made an important decision. And what was that?
I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. तो वो ये डिसाइड करता है कि मैं रोज शेव करूंगा और एक थिन सी मुस्टैच जो है वो मेंटेन करूंगा. मुस्टैच यानी मूछे, ठीक है. सो एक थिन मुस्टैच जो है वो मेंटेन करूंगा. ऑब्वियसली आई वॉज अ बैचलर एंड आई वॉज अ डॉक्टर आफ्टर ऑल, ठीक है. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I looked into the mirror and smiled. आप सब रिलेट कर सकते हो. हम मिरर में जाके बिना मतलब के स्माइल करके देखते हैं that how we are looking and all. ठीक है. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. फिर मैं एक और डिसीजन लेता हूँ कि I definitely look very good in this smile. तो मैं हमेशा ये जो स्माइल है वो मेंटेन रखूंगा, ठीक है, ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिख सकूँ. I was after all a bachelor and a doctor too on the top of it. Again came that noise from above. फिर वो ये सोचता है कि आफ्टर ऑल आई एम अ बैचलर और उसके ऊपर से मैं एक डॉक्टर भी हूँ. फिर से उनको वो चूहे जो इधर उधर भाग रहे होते हैं उसकी आवाज आती है. आई गॉट अप, paced up and down the room, then another lovely thought struck me. ठीक है, फिर मैं उठता हूँ वहाँ चेयर से, मैं इधर उधर घूम रहा होता हूँ. then again a lovely thought struck me. And what was that thought? I would marry. Obviously I would marry in the future. ठीक है. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. फिर वो ये डिसाइड करता है कि मैं एक वुमेन डॉक्टर से शादी करूंगा जिसके पास में बहुत सारा पैसा हो और अच्छी खासी मेडिकल प्रैक्टिस हो. She had to be fat for a valid reason. Next वो बोलता है कि she had to be fat enough for a valid reason. And what was that reason? If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me to catch me. ठीक है, तो बोलता है कि I should get married and I should get married to a woman doctor जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो और अच्छी खासी मेडिकल प्रैक्टिस हो. प्लस वो इतनी मोटी होनी चाहिए क्योंकि अगर मैं कोई मिस्टेक कर दूं और मैं भाग रहा हूँ तो वो मेरे पीछे ना भाग सके, ठीक है, ड्यू आउट ऑफ इट हर वेट. ठीक है, तो isn't that funny कि वो ऐसा डिसीजन लेता है. नेक्स्ट इज With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. और ये सारे thoughts मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं और मैं वापस वहाँ पे चेयर पे जाकर बैठ जाता हूँ. There were no more sounds from above. ठीक है, अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. अब suddenly क्या होता है कि एक dull thud का मतलब डल थर्ड एज इन कि ऐसा होता है कि कुछ गिरने की आवाज आती है. तो कोई सी भी चीज इफ अ थिंग फॉल तो उसकी जो गिरने की आवाज होती है ना ऐसे भम करके वैसी आवाज आती है. ठीक है, कि ऐसा लगता है कि एक रबर ट्यूब जो है वो ऊपर से नीचे गिर गई है. ठीक है, श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट. Even so, I thought I would turn round and take a look. फिर भी मतलब डेफिनेटली कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि मेरा घर या मेरा जो रूम होता है इतना वेल मेंटेन तो होता नहीं है कि कुछ चीज़ गिर नहीं सकती. ठीक है, जब वहाँ पे चूहे घूम रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गिरेगा ही गिरेगा. तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पीछे पलट के देख लेना चाहिए. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. ठीक है, जैसे ही मैं टर्न होता हूँ वैसे ही एक बड़ा सा स्नेक जो है इट रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर. रिगल्ड यानी क्रॉल होकर. ठीक है, तो वो जो स्नेक है वो क्रॉल होकर चेयर की बैक से क्रॉल होकर मेरे शोल्डर पे लैंड होता है. ठीक है, The snakes landing on me and my turning were simultaneous. जैसे ही मैं पलटता हूँ वैसे ही वो स्नेक जो है वो मेरे शोल्डर पे चढ़ जाता है. मतलब जो गिरता है वो स्नेक होता है, कोई रबर ट्यूब नहीं होती. और जैसे ही मैं पलटता हूँ वैसे ही वो जो स्नेक है फटाफट से चेयर पे चढ़कर मेरे शोल्डर पे आ जाता है. That was so quick. I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such thing. मैं ना तो उछलता हूँ, I didn't tremble, ना मैं डर के ऐसे कांपने लगता हूँ और ना ही मैं चिल्लाता हूँ क्योंकि मेरे पास में टाइम ही नहीं होता है चीज़ करने का. आप सडनली देखोगे अगर अरे एक कॉकरोच आता है ना तो हम बहुत जोर से चिल्ला देते हैं. ठीक है, वो हम अफोर्ड कर सकते हैं. लेकिन अगर स्नेक है आपके किसी बॉडी पार्ट पे आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें डर सिर्फ इतना सा है कि कहीं वो बाइट ना कर ले. ठीक है, The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The snake slithered again. Slithered यानी crawl. ठीक है, तो वो जो स्नेक है ना वैसे ही क्रॉल करके मेरे शोल्डर से क्रॉल करके मेरे लेफ्ट आर्म जो है उस पर कॉइल हो जाता है. ठीक है, उस पर बिल्कुल वो कॉइल हो जाता है अबव माई एल्बो. ठीक है, यहाँ पे ऊपर की साइड में वो कॉइल हो जाता है.
The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. तो अब just suppose आपके लेफ्ट आर्म पे यहाँ एल्बो के ऊपर अगर कोई स्नेक कॉइल हुआ है तो उसका जो हेड होता है, हुड जो बोला है उसका हेड, मतलब उसका जो फन होता है ना उसको बोला है हेड, हुड, उसका हुड और उसका फेस मतलब ऐसा कि जस्ट 3 और 4 इंचेस मेरे फेस से दूर है. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. और ये बोलना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, मतलब ऐसा कि मैं वहां पे बिल्कुल अपनी सांस रोक के बैठा हुआ हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं सांस भी लूंगा तो कहीं मुझे काट ना ले. ठीक है. आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं एकदम स्टोन पत्थर की तरह होकर बैठ जाता हूँ. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव. द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस. ठीक है, मेरा माइंड जो होता है डेफिनेटली इट वाज एक्टिव. और मेरे सामने जो वरांडा का डोर होता है दैट वाज ओपन इनटू डार्कनेस. बाहर अंधेरा हो रहा होता है क्योंकि रात का टाइम होता है. द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस. इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज ऑफ द फ्लैश. ठीक है, पूरे रूम में, क्योंकि लाइट तो होती नहीं है तो पूरे रूम में बिल्कुल अंधेरा होता है, सिर्फ वो लैम्प की जो लाइट है वो दिखाई दे रही होती है. ठीक है, और ऐसा होता है कि मैं वहां पे बैठा हुआ हूँ, एक इमेज ऑफ, मतलब इट्स लाइक स्टोन इमेज है ऑफ फ्लैश. ठीक है, एक स्टोन इमेज ऑफ फ्लैश, डेफिनेटली फ्लैश एज इन बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ फ्लैश. बट मैं बिल्कुल भी ना तो प्रॉपरली ब्रीद कर पा रहा हूँ ना कुछ एक्शन कर पा रहा हूँ, तो इट सीम्स लाइक आई एम अ स्टोन इमेज ऑफ फ्लैश. ओके, next is I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. फिर मुझे सडनली रियलाइज होता है जब हम हर जगह से फंस जाते हैं ना तो हमें एक ही जने की याद आती है, गॉड की. तो आई फेल्ट देयर, जो हमारे यूनिवर्स के क्रिएटर है उनका, कि गॉड वॉज देयर. डेफिनेटली है, भगवान है, कुछ भी नहीं है तो. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words God. तो बोलते हैं कि सपोज मैंने कुछ ऐसा बोल दिया और उनको पसंद ना आए हो, तो मैं मेरी इमेजिनेशन में ऐसे कोशिश कर रहा हूँ तो बड़े बड़े वर्ड में कि मैं लिख रहा हूँ ओ गॉड. हम बोलते हैं ना हे भगवान, वो वाली चीज, राइट. There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. So he was saying कि there was some pain in my arm, क्योंकि स्नेक जब कॉइल होता है ना तो मतलब वो बहुत जोर से पकड़ लेता है. ठीक है, तो मेरे लेफ्ट आर्म में पेन हो रहा होता है तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरा लेफ्ट आर्म, मुझे ऐसा लगता है कि एक लेड का रॉड है. ठीक है, एक बड़ी सी मोटी सी लेडन रॉड है. ठीक है, नहीं, फिर ही करेक्ट हिमसेल्फ, वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, इट वाज अ रॉड मेड अप ऑफ मोल्टन फायर. रॉड मेड अप ऑफ मोल्टन फायर क्यों बोला है? बिकॉज मेरे को इतना जोर से पकड़ रखा होता है उसने कि मुझे बिल्कुल वो जो वॉर्म, इट सीम्स लाइक कि वो इतना पेन हो रहा होता है कि वो जल रहा है, ऐसा फील हो रहा होता है मुझे. ओके, and the arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? Beginning to be drained of all strength as in मुझे थोड़ी देर में ऐसे इतना पेन हो रहा होता है कि मुझे ऐसे लगने लगता है कि मेरे इसमें बिल्कुल जान ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ. At my slightest movement the snake would strike me. और अगर मैं हल्का सा भी मूव करता हूँ the snake would definitely bite me. Death lurked 4 inches away. Now death was lurked as in death was just 4 inches away from me. Suppose it stuck. What was the medicine I had to take? फिर उसके दिमाग में, उसका जो डॉक्टर दिमाग है वो जो दौड़ने लगता है, सपोज कि अगर वो मुझे काट लेता है तो मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी है. ठीक है, there were no medicines in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. मेरे रूम में कोई भी मेडिसिन नहीं होती है. And I was what? A poor, foolish and stupid doctor. Because normally हमने कोई डॉक्टर ऐसा नहीं देखा हो जिसके पास में मेडिसिन ना हो. I forgot my danger and smiled feebly at myself. मैं अपने पूरे डेंजर को भूल जाता हूँ और बड़ी वीकली खुद के ऊपर ही हंसने लगता हूँ कि how stupid you are. Okay. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. और ऐसा लगता है कि चलो भगवान ने थोड़ी सी मेरी सुन ली, और स्नेक जो है वो अपना हेड टर्न करता है. It looked into the mirror and saw its reflection. ठीक है, वो जो स्नेक है वो अपना हेड टर्न कर कर, सामने मिरर पड़ा हुआ होता है टेबल पे, तो इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड इट्स लाइक कि सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, अपना जो रिफ्लेक्शन है वो वहां पे देख रहा होता है. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. और definitely मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो एक पहला स्नेक था जिसने मिरर में कभी देखा होगा, बट मेरे लिए वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है बिकॉज मैं जैसा डर के बैठा हुआ होता हूँ एकदम. But it was certain that the snake was looking into the mirror. But it was for sure कि वो जो snake था वो मिरर में ही देख रहा है.
वॉज इट एडमायरिंग इट्स ब्यूटी? अब वो बोलता है कि क्या सोच रहा होगा, जैसे थोड़ी देर पहले मैं मिरर में देख के क्या सोच रहा था, अपनी हैंडसमनेस को एडमायर कर रहा था। तो वॉज द स्नेक एडमायरिंग इट्स ब्यूटी? वॉज इट, देखो ऐसे पिक्चर में दिखा रखा है, ठीक है, कि वो स्नेक जो है वो मिरर में देखने लग जाता है। नाउ वॉज इट to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow or mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? Now he was saying कि जैसे मैं सोच रहा था, I was taking some important decisions कि मुझे regularly shave करना चाहिए, mustache grow करनी चाहिए, regularly smile रखनी चाहिए अपनी face पे, तो शायद snake भी ऐसा ही सोच रहा हो। तो was it about to make some decision about growing a mustache, या फिर यूजिंग आई शैडो, या फिर मस्कारा, और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट? वर्मिलियन बेसिकली क्या होता है? वर्मिलियन इज सिंदूर, ठीक है। तो कई बार आपने स्नेक्स को देखा और टीका वगैरह लगाए हुए होते हैं, तो वर्मिलियन होता है सिंदूर, ठीक है। और वॉज इट वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, ठीक है। I did not know anything for certain. What sex was this snake? Was it male or female? Now I don't know anything. मुझे नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, इसलिए मेरे दिमाग में सारी चीजें चल रही होती है कि शायद वो मुस्टैच ग्रो करने की सोच रहा है, या फिर मस्कारा लगाने की सोच रहा है, आई शैडो लगाने की सोच रहा है, ऐसे। मतलब इट वाज जस्ट इन अ ह्यूमरस वे ही वाज सेइंग, I will never know, for the sake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. ठीक है, अब मैं को डेफिनेटली ये चीज का पता भी नहीं चलेगी कभी, लेकिन क्योंकि अब क्या होता है, वो जो स्नेक है वो अनवाउंड, मतलब इट्स लाइक यहाँ से अनवाउंड होता है, मतलब वो अनकॉइल्ड होता है, और धीरे धीरे मेरे आर्म से कहा मेरी लैप में आ जाता है, ठीक है। From there it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters, ठीक है। और मेरी लैप से it crept again, वापस से क्रॉल कर कहाँ आ जाता है, टेबल पे चढ़ जाता है, ठीक है, और मिरर की तरफ फेस करके बैठ जाता है। अब परहैप्स कि वो उसको अपना रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर में और अच्छी तरीके से एंजॉय करना हो, ठीक है। I was no mere image cut in granite. नाउ अब मेरे साथ में क्या होता है कि सडनली मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ लाइक आई वॉज अ मियर इमेज, जस्ट, मियर का मतलब होता है जस्ट, आई वॉज नॉट जस्ट एन इमेज कट इन ग्रेनाइट। किसी को कट लगा होता है ना, और ब्लड जिस तरीके से रश होता है, अब सडनली देखो कोई चीज़ अगर हम बहुत टाइटली अपना हाथ पकड़ लेते हैं या बैंडेड भी लगा लेते हैं, तो ब्लड फ्लो वहाँ पे बिल्कुल बंद हो जाता है, फिर आप एकदम से खोलते हो तो ऐसा लगता है कि ब्लड इज रशिंग देयर, वैसा ही उसके साथ में भी हो रहा होता है। I was suddenly a man of flesh and blood. अब suddenly मेरे को ये realize होने लगता है कि I was a man of flesh and blood because blood flow start हो जाता है. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leaped into the yard and ran for all I was worth. ठीक है, अब धीरे धीरे मैंने डेफिनेटली अभी भी अपनी सांस रोकी भी होती है, धीरे धीरे मैं उस चेयर से उठता हूँ, ठीक है। आई क्वाइटली वेंट इनटू द डोर ऑफ द वरांडा, धीरे से चुपके से वरांडा के डोर तक जाता हूँ, वहां से मैं यार्ड में निकलता हूँ, और फिर क्या होता है, मैं इतना जोर से भागता हूँ जितना जोर से मैं भाग सकता था, बिकॉज मैं इतना डर गया होता हूँ, ठीक है। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ. Somebody asked, doctor, is your wife very fat? तो few as in a sigh of relief, ठीक है। और डेफिनेटली जो सारे ऑडियंस, ये तो स्टोरी एक डॉक्टर जो है वो अपनी ऑडियंस को सुना रहा है, सारी ऑडियंस बोलती है ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, ठीक है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना राहत की सांस लेते हैं। अब उनमें से कोई एक जना पूछता है, डॉक्टर, इज योर वाइफ रियली फैट? क्योंकि उसने बोला था कि मैं ऐसी डॉक्टर से शादी करूंगा जो बहुत मोटी हो ताकि वो मेरे पीछे ना भाग सके। No, the doctor said, God willed otherwise. My life companion is a thin, reedy person with the gift of a sprinter. ठीक है, तो बोलता है कि नहीं, भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था, मेरी जो वाइफ है, शी इज अ वेरी थिन, स्लिम, फिट एंड फैट पर्सन with a gift of sprinter. Sprinter means she is a good runner also. Somebody else asked, doctor, when you ran, did the snake follow you? फिर कोई और पर्सन पूछता है कि डॉक्टर जब आप भाग रहे थे तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया? The doctor replied, I ran till I reached a friend's house. मैं इतना जोर से भागता हूँ जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर तक ना पहुँच जाऊँ. Immediately I smeared oil over myself and took a bath, and immediately I spread oil over my whole body. ठीक है, because वही हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं ब्लड फ्लो नॉर्मलाइज करने के लिए and all, and took a bath. I changed into fresh clothes.
The next morning, all about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. ठीक है, next morning around 8:30 मैं अपने friend और एक दो और लोगों को साथ में लेके जाता हूँ ताकि वो मेरे साथ में मेरा सामान वहाँ से निकाल के ला सके. अब मैं वहाँ पे और नहीं रह सकता. ठीक है. But we found we had little to carry. लेकिन हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे पास में कुछ ले जाने के लिए होता ही नहीं है. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. What was that? I asked. ठीक है. So वो बोलता है कि कोई thief वहाँ पे रात को आ गया था, चोर, और सारी चीज़ें लेकर चला गया. ठीक है. But not exactly everything. और एक चीज़ वो छोड़ के गया था as a final insult. तो फिर एक person पूछता है कि what was that? The doctor said my vest. The dirty one. He said my vest. ठीक है, मतलब my the upper inner garment, जिसको हम बनियान बोलते हैं, वो छोड़ कर गया था, and the dirty one obviously. The fellow had such a sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. तो बोलता है कि शायद उसको cleanliness का ज़्यादा फैक्टर था और उसको वो ले जाना चाहिए था, वॉश करके यूज़ कर लेता. Did you see the snake the next day, doctor? फिर a person again asked, did you see the snake the next day also? Did you see the snake जब आप वहाँ वापस गए थे? The doctor laughed. I've never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. तो कहता है कि नहीं, उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा. And definitely it was a snake which was taken by its own beauty because वो इतना ज़्यादा involve हो गया था अपने आप को praise करने में कि वो मुझे बाद में कभी दिखा ही नहीं. ठीक है? So this is the chapter, The Snake and the Mirror. I hope you enjoyed it. Thank you.